Now we will discuss about the next one approach in order to determine the equilibrium output or equilibrium GDP. As we have already studied about the one of the approach ADN AS approach, जिसमें equilibrium output कहाँ determined होता है, जहाँ पर aggregate demand aggregate supply के बराबर होती है. यहाँ पर हमारी second approach में क्या situation है, the equilibrium output can also be achieved at the level where the saving is equal to the investment. कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पर अचीव किया जा सकता है, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं. सो इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. सेविंग हमें पता है इट इज मेनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम, कि अगर इनकम का लेवल इनिशियली कम होता है तो सेविंग नेगेटिव भी होती है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होती है. मींस जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा रहती है सेविंग नेगेटिव है, और जब कंजम्पशन इनकम से कम हो जाती है या बराबर हो जाती है तो सेविंग जीरो के बाद पॉजिटिव आने लगती है. तो हमारा जो सेविंग का है फंक्शन दैट इज द लीनियर फंक्शन. ऑन द ऑपोजिट साइड आई फंक्शन, आई में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या कंसीडर किया गया है, ओनली द ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मीन्स ओनली द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी देयर, और जो है उसके ऊपर इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. So simply here how we will determine the equilibrium level using S and I approach here. We can do it with the help of the diagram as well as the tabular presentation. So here the tabular presentation we can see very well. The thing is there. This is the income increasing at the gap of 2020. This is the consumption minimum level increasing as per the level of increasing income. यहाँ पर ये income के बराबर हो गई. अब इसके अकॉर्डिंग हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं. Income minus consumption will be equivalent to the saving. 0 minus 30, 20 minus 40, 40 minus 50, 60 minus 60, 80 minus 70, 100 minus 80, 120 minus 90, and 140 minus 100. And investment expenditure is autonomous, constant, no change will be there. Now the question arises, if we will say that where the equilibrium output will be there, we can see very well at this level our saving is equivalent to the investment expenditure. And also see or remember the thing, this is also equivalent at the level where the income is 100, it means aggregate supply is 100, and aggregate demand means 80 plus 20 is also equal to 100. At the same point we can also measure the thing that saving is equal to the investment. So here we can say that it is also the level where AD is equal to AS, but it is also the level where saving is equal to investment, 20 crore. So equilibrium income or GDP will be 100 crore. It can be representing using the diagram also. डायग्राम में हमने सिंपली किया that the investment expenditure is autonomous, fixed, and saving is coming from the below the line in a negative mode, then zero, then increasing. तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, that point will be known as the equilibrium output. This is the x-axis income and y-axis saving and investment expenditure. So this is the way with the help of which we can calculate the equilibrium level of output with the help of saving and investment expenditure. And this is the exact point where is the planned expenditure is equal to the planned output. So now the question arise, what will happen अगर आपकी savings economy में ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, या सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से कम हो जाती है. सो सिंपली जस्ट थिंक प्रैक्टिकली कि अगर सेविंग इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें लोगों ने पैसा खर्च करने की बजाय अपने पास सेव करना ज्यादा शुरू कर दिया. राइट? उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने सेविंग करनी ज्यादा शुरू कर दी. तो इकोनॉमी में क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा.
राइट कि जो प्लान्ड आउटपुट है, एक्सपेंडिचर किसके फॉर्म में जाता है कि लोग डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। प्लान्ड आउटपुट को खरीदने के लिए अब लोग कम पैसा खर्च करेंगे, तो कम पैसा खर्च करेंगे तो अल्टीमेटली क्या सिचुएशन आएगी, अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक रहेगा। अब फिर से प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपने अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो लेस आउटपुट प्लान करेंगे, और लेस आउटपुट मींस लेस इनकम। वो फिर से क्या होगा, लेस इनकम, फिर लेस सेविंग होगी, और अल्टीमेटली ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाएं। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इफ द सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो अगर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाती है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द सेविंग, देन व्हाट विल हैपन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सेविंग में पैसा कम है तो लोगों ने क्या किया, स्पेंड करना ज्यादा शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो एडी हमारी बढ़ गई, मींस वहां पर हायर एडी आ गई है एएस की बजाय, तो प्रोड्यूसर्स को अब अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस सफर करना पड़ेगा। तो फर्दर ईयर में क्या होगा, प्रोड्यूसर विल प्लान द हायर आउटपुट, और हायर आउटपुट मींस हायर इनकम, हायर इनकम होने से फिर से क्या होगा, हाई सेविंग्स होने लग जाएंगी। तो ये भी प्रोसेस कब तक रहेगा, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। In this concept, both of the equilibrium GDP concept approaches, ADS approach and saving investment approach, there are the three assumptions: short period analysis, two sector closed economy, and aggregate supply is perfectly elastic. शॉर्ट पीरियड एनालिसिस मींस कि केन्जियन की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं एडीएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वी आर स्टडिंग विद रेफरेंस टू द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ की मींस अगर आप आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, इट कैन बी डन ओनली बाय इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट। सेकेंड वन इज द टू सेक्टर्स क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पर जो थ्योरी है हमारी अप्रोचेज है, यहाँ पर इकोनॉमी को क्या कंसीडर किया गया है, क्लोज्ड इकोनॉमी, और क्लोज्ड भी टू सेक्टर इकोनॉमी, कि सिर्फ वहां पर क्या है, कोई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं है, गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, ओनली द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर इज देयर। तभी यहाँ पर क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ही है। The third one is the aggregate supply is perfectly elastic. Perfectly elastic means the unlimited changes can be made here. तो यहाँ पर मेनली क्या है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो फालतू में है, मतलब उसका यूसेज नहीं किया जा रहा, रिसोर्सेज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट है इकोनॉमी के अंदर। तो अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कभी भी इंक्रीज करना है, in that situation the aggregate supply can be increased without even any changes in the price level. So these are the mainly major three assumptions of the ADS approach and saving investment approach.